अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद शाहिद नवाज, होम्योपैथी डॉक्टर, डारावाला, तहसील चिश्तियां ते ज़िला बहावलनगर। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਸੀਪੀਆਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ BLS ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ तमाम सुनने वालियां नूं रिक्वेस्ट है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, लाइक करो और शेयर करो। उस तो बाद तैनूं सब तो पहला तो ये चीज़ दसने कि CPR किदों दिता जाता। CPR उन पेशेंट नूं दिता जाता जिहड़े पेशेंट जिन्ना पेशेंट नूं हार्ट अटैक आ जाता वा, अचानक खड़िया अटैक आया गिर गया, उन्हां पेशेंट नूं CPR दिता जाता। CPR की आ? C तो है कार्डियो, P तो पल्मोनरी, R तो रिसैसिटेशन। कार्डियो पल्मोनरी रिसैसिटेशन। दूसरा ਇਹਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣਦਾ ਇੱਕ BLS। BLS ਕੀ ਆ? B तो है बेसिक, L तो है लाइफ, S तो है सपोर्ट। मतलब कोई भी ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇ ਸਕੋਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂ ਹੈ ਕਿ CPR ਜਾਂ BLS। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ CPR ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, CPR ਕਿਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। CPR ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਖੜਾ ਵਾ ਅਟੈਕ ਆਇਆ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ CPR ਕਰਨਾ। CPR ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਵਾ? CPR ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਟਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟਰਨਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 30 ਦਫਾ ਪੰਪ ਕਰਨਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 30 ਦਫਾ ਪੰਪ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਨਮ ਦੀ ਹੱਡੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੈਕ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਏਗਾ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਦੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੂਨ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਧੜਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਆ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਉਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਵਾ ਦਾ ਪੰਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਲਾ ਕੇ ਸਾਂਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਦੋ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ CPR ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਖੜਾ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਚਲਾਓ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਸੌ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਕਿਤੇ ਘਬਰਾ ਕੇ ਗਿਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਠ ਪਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਚਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ। ਅਗਰ ਤੇ ਉੱਠ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਰਦਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਬਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਲਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਪਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਗਰਦਨ ਦੇ ਇਹ ਹੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਬਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਪਲਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਸੂਸ ਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹਜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ CPR ਦਿਓਗੇ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਪਲਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ CPR ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰਾ, ਅਗਰ ਪਲਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਲਸ ਉਹਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਫਿਰ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਰਨਾ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ। ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਆ ਕਿ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ, ਅਗਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓ ਕਿ ਫਲਾਂ ਕਮਰੇ ਦੀ ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਫੌਰੀ ਪਹੁੰਚੋ, ਇਹ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ CPR ਕਰਨਾ।
ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੰਦ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ CPR ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। CPR ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਟਰਨ ਵਾਲੀ ਹੱਡੀ ਤੇ ਔਰ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਪੰਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਮ 30 ਦਫਾ ਪੰਪ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋੜ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਕੰਮ ਦਬਾ ਕੇ ਛੋੜਨਾ, ਦਬਾਣਾ, ਛੋੜਨਾ, ਯਕ ਵਕਤ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ CPR ਦੇਣਾ, ਥੋੜਾ ਵਕਫਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਂਸ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਵੇ ਔਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯਕਾ ਦਬਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਆ, ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਸਾਂਸ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। 30 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਸ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਭੇਜਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਂਸ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਛੋੜ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਂਸ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਸ ਦਿਓਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਉਹ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੀ ਬੇਸਿਕ ਲਾਈਫ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਈ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਗਾਮ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਤਲਾਹ ਵਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵਾ, ਉਹਤੇ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ ਔਰ ਫਲਾਂ ਵਾਰਡ ਆ, ਫਲਾਂ ਕਮਰਾ ਵਾ, ਉਹ ਫਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਫੌਰਨ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਟਾਫ ਆ ਉਹਨੂੰ CPR ਕਰੇ ਜਾਂ ਬੇਸਿਕ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਤਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਫੌਰਨ ਇੱਕ ਕਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ 555 ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਡਾਇਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਫਲਾਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਲਾਂ ਰੂਮ ਦੇ ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫੌਰੀ ਪਹੁੰਚੋ। ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਕਸਰ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ, ਮਾਈਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਣੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਬ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ ਉਹ ਫਲਾਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਫਲਾਂ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹ CPR ਦੇ ਕੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਵੀਡੀਓ, ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ, ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ CPR ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ CPR ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਪਲਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਮ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਪਲਸ ਤੋਂ ਆ ਸਕਦੀ ਗਰਦਨ ਤੋਂ, 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਉਹਦੀ ਇਹ ਬਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਰੱਖੋਗੇ, ਇਹ ਬਗਲ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲਸ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੀਚੇ ਦੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਸੇ ਆ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ CPR ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਬੇਸਿਕ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ? ਅਚਾਨਕ ਜਾਂ ਜਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਕੋਈ ਅੱਗ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਨਾ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ CPR ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿਸੇ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਕਰ ਬੇਸਿਕ ਲਾਈਫ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਦੇਣਾ। CPR ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ CPR ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਹਾਰਟ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਬਲੱਡ ਦੀ ਜਰਕੂਲੇਟ ਜਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਬਚਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈ 0345 45 88 618, 0345 45 88 618। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਲੂਮਾਤ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ WhatsApp ਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। तो पल्स कहाँ देखना वो हर किसी में अलग अलग है। तो बड़े जैसे बड़े रहते हैं तो ये जो मसल्स है ना, ये दिखा, इसके बाजू में ये हमारा विंड पाइप है, ट्रकिया जिसको बोलते हैं, इसके बाजू में ये जो गड्ढा है यहाँ पे आपको फील करना है।
बहुत से लोग यहाँ पे फील करते हैं, यहाँ पे नहीं होने वाला। इसके लिए कोशिश करो कि खुद की पालपेट करना सीखो, है ना। तो वो अपनी पल्स करके देखोगे तभी टाइम पे देख पाओगे। कहाँ पे देखना है, ये जो विंड पाइप है यहाँ से ऐसे लैटरल ये साइड में गए तो ये जो गड्ढा है मसल के अंदर वहाँ पे वो पल्स रहती है। सब लोग अपनी अपनी पालपेट करने की प्रैक्टिस करो तभी वो पेशेंट में देख पाएंगे। तो जब मैं देख रहा हूँ तो मेरे को कितनी देर के लिए चेक करना है, 10 सेकंड के लिए। ऐसा नहीं कि 15 मिनट वही पल्स पकड़ के बैठ गए, क्योंकि इमरजेंसी है। मैंने क्या बताया, मिनिमम इंटरप्शन जितने जल्दी हो सके उसको चेस्ट कंप्रेशन हमको शुरू करना है। 10 सेकंड के लिए पालपेट करो। 10 सेकंड में अगर पल्स नहीं लगी मतलब पल्स नहीं है और ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे चेस्ट कंप्रेशन से, अगर हमको पल्स नहीं लगती है तो। अब पल्स हर किसी के अलग अलग रहती है। बड़े आदमी में हम यहाँ पे पल्स देखते हैं क्योंकि ये बड़ी होती है और अच्छे से आसानी से पालपेट हो जाती है। जो बहुत छोटे बच्चे हैं, जो इन्फेंट बोलते हैं, जो 1 साल के नीचे का बच्चा है, तो उसको ये जो हाथ है, हाथ के अंदर में पालपेट करनी है, यहाँ पे नहीं करने की, यहाँ पे नहीं करने की। नेक बहुत छोटी होती है उनकी, है ना, तो वहाँ पे पालपेट ही नहीं होगी। अगर मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ तो भी मैं इसको पालपेट बड़ी मुश्किल से कर पाऊँगा, तो आम आदमी के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है। तो उसको यहाँ पे देखनी है। कहाँ पे, ये हाथ का जो अंदरूनी हिस्सा है वहाँ पे एक हड्डी होती है, वो हड्डी के ऊपर आपको फील करना है कि पल्स आ रही कि नहीं। अगेन 10 सेकंड के लिए, 10 सेकंड में नहीं आता तो इनको भी हमको चेस्ट कॉम्प्रेशन देना पड़ेगा। जो थोड़े बड़े बच्चे 1 साल के ऊपर के, अगर उनको यहाँ पे फील कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो फिर यहाँ पे जांग में भी एक मोटीनेस होती है जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसको फेमोरल आर्टरी बोलते हैं। लेकिन बड़े बच्चों में भी आप इसमें फील कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि चेस्ट कॉम्प्रेशन कैसे देना है। ये अलग अलग है, बड़ों के लिए अलग है, 1 साल के ऊपर के बच्चों के लिए अलग है, और 1 साल के नीचे के बच्चों के लिए अलग है ना। तो सबसे पहले हमने रिस्पॉन्स देखा, रिस्पॉन्स नहीं है, कोड ब्लू एक्टिवेट किया। कोड ब्लू एक्टिवेट करने के बाद में हमने पल्स देखी, तो पल्स नहीं है। पल्स नहीं है तो सबसे पहले हमको देना है चेस्ट कॉम्प्रेशन। चेस्ट कॉम्प्रेशन देने के लिए, है ना, जस्ट डेमो करते हैं, डोंट वरी। डेमो करने के लिए आपको राइट साइड में इस तरह पोजीशन होना है, नी के ऊपर। अगर आप छोटे हैं तो नीचे से नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो बेड के ऊपर चढ़ना है। बेड के नीचे का सरफेस फॉर्म होना चाहिए। जो एयर बेड है उसके ऊपर आप नहीं दे सकते, है ना। फिर इसके बाद में समझो ये निप्पल्स है, तो निप्पल के नीचे ये हड्डी के ऊपर इस तरीके से आपको पोजीशन होना है, ठीक ठीक। और मेरे हाथ देखो स्ट्रेट है, और शोल्डर से आपको दबाना है ना। मैं आपको एक पिलो के ऊपर करके दिखाऊंगा, लेकिन अभी आप मेरी पोजीशन देखो। आपको ऐसे ऐसे नहीं करना है ना, यहाँ से कमर से नहीं हिलना है, ना ही हाथ को यहाँ से बेंड करके करना है, समझे। ये हाथ ऐसे लॉक करना है। लॉक क्यों करना है, जब मैं ऐसे लॉक करता हूँ तो प्रेशर सीधा जाएगा यहाँ से, दूसरा मैं थकूंगा नहीं। अगर मैं ऐसे 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 चेस्ट कॉम्प्रेशन दूंगा तो मैं थक जाऊंगा, दूसरा मेरा हाथ अपनी पोजीशन से हिल जाएगा, 10 बार मुझे उसको जगह पे लाना पड़ेगा। उसको एक बार फिक्स कर दिया कि आपके ये एल्बो लॉक करने हैं, और उसके बाद में आपको कॉम्प्रेशन देने हैं, समझे समझे। तो इस तरीके से हमको चेस्ट कॉम्प्रेशन देना है। आ जाओ मिलिंद, उठना। तो एक डेमो के लिए अपने पास अभी डमी नहीं है, तो इस तरीके से आपको देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 30 के बाद में आपको ब्रीथ देने हैं। ब्रीथ देने के लिए चीन उठाना है, माउथ में फूंकना है। कितने बार, 2 बार। अभी करेंगे क्या, अभी कोविड चल रहा है तो करेंगे क्या, नहीं करेंगे, है ना। तो उसके लिए हमको बैग एंड मास्क देना है। बहुत बार एक्सीडेंट के केस रहते, मुंह में ब्लड रहता, या फिर बहुत सारा मुंह में सलाइवा भरा रहता है ना। ऐसे देख के ही लगता है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिव है। तो वैसे इसमें माउथ टू माउथ देना है क्या, नहीं देना है। कोशिश करना है कि बैग एंड मास्क देना है। बैग एंड मास्क अवेलेबल नहीं है तो क्या करेंगे, सिर्फ चेस्ट कॉम्प्रेशन देते रहना है, ठीक है। लेकिन CPR करना है। अगर आपके पास में बैग एंड मास्क है, या फिर बहुत बार एक अलग मास्क आता है जिसके ऊपर आप माउथ से ब्रीथ दे सकते हो, वो अपने पास अवेलेबल नहीं है। कर सकते हैं अगर मुंह अच्छा है तो। अगर मुंह में सिक्रीशन है, अभी तो नहीं करना है, कोरोना टाइम में नहीं करना है ना। कोरोना टाइम में आपको माउथ टू माउथ नहीं देना है, आपको बैग एंड मास्क ही देना है। तो बैग एंड मास्क देने के लिए फिल्टर भी यूज़ करना चाहिए आइडियली।
तो इस तरीके से कॉम्प्रेशन देना है। 30 कॉम्प्रेशन देने के बाद में 2 ब्रीथ, फिर से चेस्ट कॉम्प्रेशन के ऊपर आना है। अगर कोई 2 लोग है ना, मोइन आ जाओ, और अडल्ट पेशेंट है, बड़ा पेशेंट है, तो मैंने जैसे 30 कॉम्प्रेशन देने के बाद में जब मैं रुकूंगा तो सर 2 बार ब्रीथ देंगे, ऐसा नाक रहेगा ना उसका, हाँ ब्रीथ दो। मैं 1001, 1002। हाँ, तो इनके 2 ब्रीथ देने के बाद मैं फिर से शुरू हो जाऊंगा। ठीक है, ऐसा कितनी बार करना है? 5 साइकिल्स। 5 साइकिल्स क्यों? 5 साइकिल्स ही क्यों? एक साइकिल के बाद भी तो मैं चेक कर सकता हूँ ना, हो सकता है हार्ट आ गया होगा उसका, क्योंकि हम चाहते हैं कि इंटरप्शन मिनिमम हो, है ना। हम नहीं चाहते कि उसके चेस्ट कॉम्प्रेशन में इंटरप्शन आए। तो आप 5 साइकिल दे दो। 5 साइकिल के बाद में हो सकता है मैं थक जाऊँ, है ना। कितना भी हट्टा कट्टा आदमी हो, अगर आप प्रॉपरली एक अडल्ट को CPR दे रहे हैं तो चेस्ट कॉम्प्रेशन के बाद में 5 साइकिल के बाद में थक जाता है। तो 5 साइकिल के बाद में मैं शिफ्ट हो जाऊंगा, और सर तुम इधर ही आ जाओ, हाँ आ जाओ। तो सर आ जाएंगे चेस्ट कॉम्प्रेशन के लिए। उतनी देर में मैं पेशेंट का पल्स भी देख लूँगा, है ना। तो जितनी देर में सर शिफ्ट होके आते हैं मैं पेशेंट का पल्स देख लूँगा और हम शिफ्ट हो जाएंगे। अगर पल्स है तो फिर मेरे को देखना है ब्रीदिंग है क्या। अगर ब्रीदिंग है तो चेस्ट पल्स भी आ गई और ब्रीदिंग भी आ गई, तो फिर वो पेशेंट को ऑक्सीजन लगा के शिफ्ट करना है। नहीं, अगर चेस्ट उसमें हार्ट बीट आ गया, पल्स आ गई, लेकिन रेस्पिरेशन नहीं ले रहा है, तो फिर मैं उसको हर 5 सेकंड में 6 सेकंड में 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 उसके बाद में एक देना है ना। 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006। अब ये 1000 क्यों बोल रहा हूँ कि टाइम पे मैं घड़ी नहीं देख सकता, है ना, और मैं हर तरफ घड़ी की तरफ ध्यान देके पेशेंट को CPR भी नहीं दे सकता। इसलिए उन्होंने एक देखा कि इतना बोलने के लिए इतना समय लगता है, तो 1001 से लेके 1006 तक के बोलोगे तो 6 सेकंड हो जाते हैं, उसके बाद में आप ब्रीथ दे सकते हो। ठीक है, तो अगर ब्रीदिंग स्पॉन्टेनियसली आ रहा है तो ऑक्सीजन लगा के शिफ्ट करना है। अगर ब्रीदिंग नहीं आया लेकिन पल्स आ गई तो आप उसको सिर्फ ऐसा ब्रीदिंग देते देते शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक, अगर समझो ये चेस्ट कॉम्प्रेशन दे रहे हैं और बीच में मैं आ गया, कोड ब्लू आ गया, कोड ब्लू की टीम आ गई, तो जो प्राइमरी रेस्क्यूअर थे वो छोड़ देंगे क्या पेशेंट को? उनको CPR कंटिन्यू करना है। ठीक है, जो चेस्ट कॉम्प्रेशन दे रहा है वो चेस्ट कॉम्प्रेशन पे ही फोकस करेगा, वो कुछ भी नहीं बोलेगा। अगर दूसरा आदमी है जो बैगन मास दे रहा है, वो बताएगा कि ऐसा ऐसा पेशेंट था, हमको ऐसा कोलैप्स मिला, हमने देखा तो पल्स नहीं थी, CPR शुरू किया है और ये अभी 3री साइकिल है। ये बताना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो बोलेगा 2 साइकिल और कर लो, उसके बाद में जब तुम स्विच होंगे तो मैं पेशेंट को असेस करूँगा। ठीक है, तो जब कोड ब्लू आ जाता है तो उसके बाद भी आपको CPR रोकना नहीं है, आपको बेसिक लाइफ सपोर्ट रोकना नहीं है। ठीक, कोड ब्लू का मेन काम है डिफिब लाना, है ना, डिफिब्रिलेटर जो है वो लाना। क्योंकि बहुत बार जब ये कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट रहते हैं, हार्ट ब्लॉक के पेशेंट रहते हैं, इनमें अरिथमिया होता है, हार्ट बीट बराबर रेगुलरली काम नहीं कर रही होती, उसमें हमको शॉक देना होता है। तो इसलिए कोड ब्लू आने तक के आपको CPR कंटिन्यू करना है। वो आने के बाद में रिदम देखते हैं, अगर उनको लगा कि शॉक देने की ज़रूरत है तो वो शॉक देंगे। ठीक, तो ये अपना बेसिक लाइफ सपोर्ट का अडल्ट का हो गया। अगर चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन में भी चेस्ट कॉम्प्रेशन आप इसी तरीके से दे सकते हैं। लेकिन अगर समझो बहुत छोटा बच्चा है और उसकी चेस्ट इतनी बड़ी नहीं है कि आप दोनों हाथ रख सके, तो आप सिंगल हाथ से भी चेस्ट कॉम्प्रेशन दे सकते हैं, है ना। इसमें एक थोड़ा सा चेंज है। बच्चों में अगर एक अकेला आदमी है जो बच्चे को बेसिक लाइफ सपोर्ट दे रहा है तो 30 कॉम्प्रेशन देने के बाद में 2 ब्रीदिंग देगा। लेकिन अगर 2 लोग हैं, जैसे मैं हूँ और मोइन सर है, तो मैं 15 बार दबाऊंगा और उसके बाद में 2 बार सर ब्रीथ देंगे। ठीक है, कॉम्प्रेशन देने का तरीका वही है, निप्पल लाइन जो है उसके साथ में नीचे में, है ना। एक हाथ से आप बच्चों को दे सकते हैं, 2 हाथ से अडल्ट को दे सकते हैं। ठीक, अगर बहुत छोटा बच्चा है, उससे भी छोटा बच्चा है, 1 साल के नीचे का बच्चा है जिनको इन्फेंट बोलते हैं, इसमें और थोड़ा चेंज है, ये हमको पता होना। अगर मैं अकेला कर रहा हूँ और चेस्ट कॉम्प्रेशन देने की बात है, तो जैसे ये लाइन है उसके नीचे 2 उंगली से दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30। माउथ टू माउथ नहीं देना है तो बैगन मास्क के लिए मास्क उसका छोटा रहेगा, है ना,
दे दो सिस्टर। आप इस तरीके से फिर उसको, और जब ब्रीथ देते हैं तो चेस्ट राइज हो रही कि नहीं हो रही आपको देखना है ना। उसके बाद फिर से 30 बार फिर से अगर सर आ गए, है ना, अगर सर आ गए तो ये मैं इसलिए कर रहा था ताकि मैं यहाँ से देने के बाद में तुरंत उसको बैग एंड ये माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन भी दे सकूँ। अगर सर आ गए और सर एयरवे हैंडल कर रहे तो मैं और अच्छी तरीके से उसको दोनों हाथ से करूँगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1001, 1002. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1001, 1002. हाँ, है ना। तो जब दो लोग करते हैं तो 15:2 कॉम्प्रेशन देना है। दूसरा, मैं जोर से बोल रहा हूँ, है ना, जब भी मैं काउंट कर रहा हूँ तो मन में काउंट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उसको भी तो पता होना चाहिए कि मेरा ब्रीथ देने का टाइम आ रहा है करके, तो वो भी रेडी हो जाएगा, नेक की पोजीशन दे देगा, सील बराबर से कर लेगा, और जैसे ही आप 15 बोलोगे वो ब्रीथ देगा। अडल्ट में अगर 2 लोग है या 1 लोग है, एक है या 2 लोग है बेसिक लाइफ सपोर्ट देने के लिए, हमारा रेशो 30:2 ही है। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उसमें अगर 2 लोग आते हैं तो उसमें 15:2 करना है, ठीक, क्योंकि रेस्पिरेशन बच्चों को ज़्यादा चाहिए रहता है, उनकी सांस की गति ज़्यादा रहती है। तो अगर 2 लोग हैं तो हम चाहते हैं कि उनको थोड़ा सा ज़्यादा बार सांस दिया जाए। अगेन, अगर कोरोना का एपिडेमिक है अपनी अभी जैसा चल रहा है, या फिर बच्चों को बच्चा बहुत ज़्यादा ग्रॉसली इन्फेक्टेड लगता है, तो उसमें आपको माउथ टू माउथ नहीं देना है, उसमें आपको बैग एंड मास्क ही देना है, समझे। अब इसमें जो चेस्ट कॉम्प्रेशन हम दे रहे थे उसमें मैंने जैसे बताया कि ऐसे ऐसे अगर आप दबाएंगे तो हार्ट उसका फिलअप ही नहीं होगा। तो हमको कैसे करना है, 1 2, तो ये जब दे रहे हैं आप, उसके बाद में आप उंगलियों को ऊपर उठा रहे हैं, ताकि जो हार्ट जो कॉम्प्रेस हो रहा है वो वापस अपनी जगह पे आए। वापस अपनी जगह पे आएगा तो वो ब्लड अंदर में फिलअप करेगा, और नेक्स्ट टाइम आप जब दबाओगे तो वो पंप करेगा। अगर इसी तरीके से आप दबाते रहे तो वो फिलअप ही नहीं होगा, वो फिलअप नहीं होगा तो नेक्स्ट साइकिल आपका वेस्ट जाएगा, क्योंकि ब्रेन को ब्लड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसमें वो एक फिक्स क्वेश्चन रहता है कि चेस्ट कॉम्प्रेशन के फीचर्स क्या है ना, चेस्ट कॉम्प्रेशन के फीचर्स क्या है। तो 4 फीचर्स हमको याद रखना है। एक, 100 to 120 टाइम्स आपको पुश करना है। दूसरा, पुश फास्ट, पुश हार्ड, मतलब आपको जोर से दबाना है, एडिक्वेट दबाना। अब एडिक्वेट मतलब कितना, उन्होंने ऐसा बोला है कि अडल्ट में 5 सेंटीमीटर तक दबाओ, और जो बच्चे हैं उसमें 4 सेंटीमीटर तक दबाओ। अब हम घड़ी तो लेके बैठ नहीं सकते या फिर टेप तो लेके बैठ नहीं सकते, एक अंदाजे से हमको देखना है कि 5 सेंटीमीटर तक अडल्ट में आपको चेस्ट कॉम्प्रेस करना है, और छोटे बच्चों में 4 सेंटीमीटर तक। अगर कोई साथ में है, जैसे हॉस्पिटल सेटअप है, सब लोग आ रहे हैं, तो आप साइड बाय साइड एक जन पल्स देख सकता है कि नहीं। यहाँ पे बड़े में, यहाँ पे बच्चों में, यहाँ पे फीमोरल पल्स देख सकता है कि आप जब चेस्ट दबा रहे हो तो पल्स आ रही कि नहीं आ रही, है ना। अगर पल्स आ रही है मतलब एडिक्वेटली बराबर से दबा रहा है, समझे। तो अगर आपको पूछा कि चेस्ट कॉम्प्रेशन के कार्डिनल फीचर्स क्या है, तो उनको बताना है कि पुश फास्ट, पुश हार्ड, मतलब जोर से दबाना है और फास्ट दबाना है, 100 से 120 बार 1 मिनट में दबाना है, मिनिमम इंटरप्शन रखना है ना। मतलब ऐसा नहीं कि साइकिल दे दी, बाद में पल्स देख रहे, फिर चेस्ट कॉम्प्रेशन दिया और मेरे से बात कर रहे, किसी को एक्सप्लेन कर रहे कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, मिनिमम इंटरप्शन। तो जो चेस्ट कॉम्प्रेशन दे रहा है वो चेस्ट कॉम्प्रेशन ही देगा, जो कुछ चीज़ें बतानी की है, जो एयरवे दे रहा है, ब्रीदिंग दे रहा है, वो करेगा, है ना। तो मिनिमम इंटरप्शन। और चौथी चीज़ है कि अलाउ चेस्ट रिकॉइल, तो दबाने के बाद उसको वापस भी आने देना है ना। तो अगर हम इसको हिंदी में बोलना है, अपने को इंग्लिश में नहीं बोलना आ रहा, तो हमको बोलना है कि हमको फास्ट और हार्ड चेस्ट कॉम्प्रेशन देना है ना। फास्ट देना है, हार्ड देना है, 100 से 120 बार देना है 1 मिनट में उसमें इंटरप्शन एकदम मिनिमम रखना है। और चौथा, चेस्ट को अपनी जगह पे आने देना है ताकि हार्ट में ब्लड भर सके, समझा। अब ये वीडियो जब सुनोगे तो याद कर लेना ये चीज़ को, यही चीज़ें आपको दोहरानी है, ठीक है। तो हमने क्या मेन चीज़ें देखी हमारे कल के इसमें, जो भी हमारा जब भी इंस्पेक्शन रहेगा तो क्या चीज़ें देखनी है। अडल्ट में हमको चेस्ट कॉम्प्रेशन देने के लिए यहाँ पे आके 30 से 30:2 रेशो देना है। बच्चों में हमको सिंगल रेस्क्यूअर अगर है, सिंगल आदमी जो बेसिक लाइफ सपोर्ट दे रहा है तो 30:2 देना है, लेकिन अगर 2 लोग आ रहे हैं तो 15:2 देना है, ठीक है। जब भी कोड ब्लू टीम आती है तो हमको छोड़ना नहीं है ना, हमको कंटिन्यू करना है। और उसके बाद में
जैसे इंस्ट्रक्शन देगा टीम लीडर उसको फॉलो करना है। अगर वो बोलता है कि नेक्स्ट साइकिल के बाद आप छोड़ देना, कोई और करेगा, तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन तब तक के जब तक के वो बताता नहीं तब तक के पेशेंट को छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं कि कोड टीम आ गई तो कोड ब्लू आ गई टीम तो हमारा काम हो गया कर। ठीक है, तो एक बार क्विकली रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हमको देखना है पेशेंट का रिस्पॉन्स, उसको टैप करना है। बच्चे को आप यहाँ पे टैप कर सकते हो, बड़ों को आपको शोल्डर पे टैप करना है। उसके बाद में आपको रिस्पॉन्स देखना है। रिस्पॉन्स नहीं है तो सबसे पहले किसी को हेल्प के लिए बुलाना है और कोड ब्लू को एक्टिवेट कराना है। कोड ब्लू को एक्टिवेट करने के लिए नंबर है 555। ठीक है, वो बोलेगा कोड ब्लू और जगह बताएगा। ठीक है, उसके बाद में जब भी आपने देखा कि रिस्पॉन्स नहीं है, कोड ब्लू को एक्टिवेट कराने के लिए बोल दिया, उसके बाद में आप बच्चों में आप पल्स यहाँ पे देखोगे, बड़ों में यहाँ पे देखोगे, है ना, विंड पाइप के पास में। 10 सेकंड के लिए चेक करना है। 10 सेकंड में अगर पल्स नहीं मिलती तो आपको चेस्ट कॉम्प्रेशन शुरू करना है। बड़ों में करना है तो पोजीशन मैंने बताई है, घुटनों के बल आके हाथ स्ट्रेट कर रख के आपको कॉम्प्रेशन देना है और उसके बाद में 30:2 कॉम्प्रेशन देना है। 1 साल के ऊपर के बच्चों के लिए 30:2, लेकिन अगर समझो 2 लोग हैं जो बच्चे को बेसिक लाइफ सपोर्ट दे रहे हैं तो 15:2 है ना, 15 बार चेस्ट कॉम्प्रेशन, 2 बार ब्रीदिंग। छोटे बच्चों में अगर दोनों हाथ रखने के लिए जगह नहीं है तो आप एक हाथ से भी दे सकते हैं। 1 साल के नीचे के बच्चे के लिए जब आप अकेले हो तो आपको 2 उंगली से देना है राइट साइड में खड़ा होकर। क्यों? क्योंकि आपने चेस्ट कॉम्प्रेशन दिया, उसके बाद में तुरंत ब्रीदिंग दे सके। लेकिन अगर 2 लोग हैं तो तुरंत आपको ये पोजीशन में आना है चेस्ट कॉम्प्रेशन देने के लिए, है ना। ये भी चीज़ वो नोट डाउन करते हैं कि जब 2 लोग हो गए, एक की जगह पे 2 हो गए, तो उन्होंने पोजीशन चेंज की कि नहीं की। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को समझना है। और कोड ब्लू आने के बाद में पेशेंट को छोड़ना नहीं है, उसके बाद में आपको कंटिन्यू करते रहना है। चेस्ट कॉम्प्रेशन के कार्डिनल फीचर पूछे तो बताना है कि पुश फास्ट, पुश हार्ड। आपको फास्ट पुश करना है और हार्ड पुश करना है। 100 से 120 बार 1 मिनट में चेस्ट कॉम्प्रेशन देना है। मिनिमम इंटरप्शन रखना है और चेस्ट रिकॉइल को अलाउ करना है। समझे?